Hello students, welcome once again. This is your English teacher Anuradha Dubey once again with you with poem number 4 from class 12 textbook reader Flamingo. The title of the poem is A Thing of Beauty and it has been composed by John Keats, a famous British romantic poet. Let's have some idea about the background of the poem and the poet. John Keats was a British romantic poet. His poetry has an immense power to sway एंड डिलाइट द रीडर्स. उनकी पोएम में एक बहुत ही अद्भुत डिलाइटफुल क्वालिटी हुआ करती थी. ही इज़ गिफ्टेड इन आर्ट ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस in terms of language. John Keats was suffering from tuberculosis, because of which he died at a very early age of 25. So his observations about the world, his aspirations and moods are themselves represented in form of poems, and that's why they are very much appealing to the readers. This poem is an excerpt from Endymion, a poetic romance. ये जो present poem है एक लॉन्ग पोएम का पार्ट है जिसका नाम है एंडीमियन अ पोइटिक रोमांस, विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू विच अ शेफर्ड नेम एंडीमियन falls in love with goddess Cynthia, that is the moon goddess, and describes in this poem how he is mad about beauty and what is his own idea about the nature of truly beautiful objects. So here is the text. I have divided the whole text into two parts, and the first part goes like this. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. ये शुरू की लाइंस में ही पोइट ने अपना आइडिया बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एक ट्रूली ब्यूटीफुल थिंग, एक नेचुरल थिंग के बारे में उसका आइडिया क्या है. पोइट कहता है A thing of beauty is a joy forever. A naturally beautiful thing is able to give you everlasting joy. A truly beautiful thing is a source of eternal joy for us. Its loveliness increases with the passage of time. Its beauty continues to increase. It will never pass into nothingness. That means it will never diminish. It will never come to an end. Unlike the worldly things and material items, जो भौतिक चीज़ें जिनके पीछे हम भागते रहते हैं, जिनकी ओर हम आकर्षित होते हैं, उनकी स्पेशलिटी होती है कि वो आपको एक निश्चित समय तक ही आनंद दे सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लाइक टू ईट चॉकलेट, यू कैन गेट प्लेजर आउट ऑफ ईटिंग चॉकलेट ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. अगर आपको लगातार कई सारे चॉकलेट खाने के लिए दिए जाएं तो धीरे धीरे आपको उससे आने वाला आनंद जो है वो कम होने लगता है. एंड मे बी अ पॉइंट ऑफ टाइम में कम व्हेन इट सीजेस टू गिव यू एनी काइंड ऑफ प्लेजर. हो सकता है आपको चॉकलेट से चिढ़ हो जाए और आप उससे बोर हो जाएं, लेकिन एक नेचुरली ब्यूटीफुल चीज़ के साथ ऐसा नहीं होता है. इट इज़ अ सोर्स ऑफ एटर्नल जॉय और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती. तो आखिर ये ब्यूटीफुल चीज़ है कहाँ, आखिर नेचर के ये ब्लेसिंग्स हैं कहाँ? दे आर ऑल अराउंड अस. अ बोअर क्वाइट फॉर अस. ये जो नेचर है, ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, दे आर blessing us with a bower. Bower means a shady place under a tree. A person who has traveled in the scorching heat, a shady place under a tree is like a blessing. And a sleep full of sweet dreams. Many of the people continue to complain that they are not able to enjoy a blissful sleep. लोगों को नींद नहीं आती, लोगों को गोलियां खानी पड़ती हैं. तो एक वो रात जब आपको पीसफुल स्लीप मिले, दैट टू विद ब्यूटिफुल ड्रीम्स, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस. एंड हेल्थ, जब हम कंप्लेंट ना करें कि हमें ये हेल्थ का इशू है या ये हेल्थ का इशू है, वो समय हमारे लिए जब हम परफेक्ट स्टेट ऑफ हेल्थ में होते हैं तब हमारे लिए नेचर की एक ब्लेसिंग होती है. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ,
and quiet breathing. Sometimes when we are physically fit but we are not in a sound state of emotions and health and brain and mind, we are not able to enjoy mental peace and emotional rest. तो एक ऐसा समय जब we are in no confusion, when we are very clear and very calm, composed and convinced, when we have no dilemma to face, ऐसा जो समय आता है वो हमारे लिए नेचर की ब्लेसिंग है. यानी हमारे चारों तरफ नेचर ने अपने ब्लेसिंग्स को किसी ना किसी रूप में छोड़ रखा है, हमारे लिए हमें ब्लेस कर रखा है, जिनको कि सिर्फ हमें पहचानना है और उनको एंजॉय करना है. मे बी दिस इज द रीज़न देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स टुमारो और यू कैन से एवरी न्यू मॉर्निंग, are we redding means weaving a flowery band to bind us to the earth by one or the other natural object. We try to connect ourselves or associate ourselves with the nature के किसी भी सोर्स की ओर हम अट्रैक्ट होते हैं और उस सोर्स से हम अपने आप को नेचर के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि हमें नेचर के ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमेशा हमारे ऊपर श्योर होती रहें. इस लास्ट के 2 लाइंस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मे बी समटाइम्स वी आर अट्रैक्टेड टू द वर्ल्डली आइटम्स, टू द अर्थली आइटम्स, दैट्स वाई वी फेल टू सी and observe the real pleasure that we can get out of some naturally beautiful objects. हो सकता है कि हम दुनियादारी की चीज़ों के पीछे इतने ज़्यादा खो जाते हैं, उनके पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि जो नेचर के ब्लेसिंग्स हमारे चारों तरफ हैं उनको हम भूल जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं. तो ये यू कैन इंटरप्रेट दीज सेंटेंसेस इन आइदर वेज. सो spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature, it's not so that nature is always providing us with happy things only. ऐसा तो नहीं होता कि दिन हमेशा एक से रहते हो, हमेशा अच्छा हो रहा है, सब कुछ ब्यूटीफुल हो रहा है, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है, हमारे एफर्ट्स जो हैं वो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वी आर इन अ परफेक्ट पीसफुल स्टेट. ऐसा नहीं होता है. कई बार इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, कई बार हमारी लाइफ में बहुत डिस्पोंडेंस होता है, बहुत सैडनेस होती है, बहुत डिजेक्शन होता है. ऑफ द इनह्यूमन डार्थ ऑफ नोबल नेचर, दो द नेचर इज़ वेरी सबलाइम. नेचर कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करती है, फिर भी इट हैज़ ब्लेस्ड समवन विद समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन गिवन टू द अदर. तो कई बार कोई बहुत गरीब होता है, कोई बहुत अमीर होता है, कोई बहुत ब्यूटीफुल होता है, कोई उतना ब्यूटीफुल नहीं होता है, कोई एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा होता है, किसी की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, किसी में कोई और एबिलिटीज़ होती हैं जो ज़्यादा अच्छी होती हैं. तो वी कैन नेवर कंप्लेन कि नेचर हैज़ डन सम इनजस्टिस टू अस. लेकिन हमें उस समय ऐसा लगता है, वी ट्राई टू कंप्लेन, वी कंटिन्यू टू कंप्लेन टू द नेचर दैट वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ गलत हुआ है. वी कंटिन्यू टू कंप्लेन ऑफ द ग्लूमी डेज. कई बार हमारे कई दिन दुखों में गुजरते हैं. व्हेन वी फेल टू गेट डिज़ायरेबल रिजल्ट्स ऑफ अवर 100% सिंसियर एफर्ट्स, हम जो करते हैं पूरी जी जान लगा देते हैं लेकिन रिजल्ट्स उस हिसाब से हमको नहीं मिलते हैं. ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, कई बार हम हेल्दी नहीं होते हैं, हम बीमार होते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे फिजिकल कंडीशन हमको अलाउ नहीं करती है. ऐसे ही ओवर डार्कन्ड वेज, समटाइम्स वी आर इन सच अ कन्फ्यूज स्टेट, हमको लगता है दैट वी आर लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड मेड फॉर आवर सर्चिंग. हमें अपना रास्ता ढूंढने के लिए अंधेरे में इस दुनिया में छोड़ दिया गया है. वी आर मेकिंग ऑल द एफर्ट्स बट वी आर नॉट गेटिंग एनी सक्सेस इन कमिंग आउट ऑफ दिस डार्कनेस. और हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं. यस, in spite of all, okay, I accept that there are certain things which cause despondence and misery to human being, but what is the result? क्या लाइफ उस समय जीने लायक नहीं रहती है? Is it not worth living? Is it not beautiful anymore? No, it's not that. क्योंकि
इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारी चीज़ों के बावजूद, इस सारी मिजरी, ग्लूम, डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, nature has blessed us with one or the other object that has the ability to remove that dark cover of ignorance and confusing from our souls and enlighten us with new hope and optimism. कोई ना कोई एक गिफ्ट नेचर ने हमें ज़रूर दिया है जो हमारी ज़िंदगी में रह के, हो सकता है ये कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई बुक हो, कोई सॉन्ग हो, कोई स्पीच हो जो आपने कभी सुनी हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये आपको गहरे कन्फ्यूज़न और इग्नोरेंस के अंधेरे से निकाल के आपको रोशनी की तरफ लेके जा सकती हैं। ये भी हमारे लिए नेचर की एक ब्लेसिंग ही है। नाउ लेट्स एनालाइज सम वर्ड्स विच हैव अपीयर्ड इन दीज लाइन्स along with the meanings. The first word is loveliness, that means charm, beauty. Nothingness means without any essence, जिसका कोई मतलब नहीं हो, जिसमें कोई मीनिंग नहीं हो. Bower here means a shady place under a tree, पेड़ के नीचे का छायादार स्थान. Wreathing means weaving, बुनना. Band here means strip, कोई बंधन, कोई garland. Spite here means in spite of, बावजूद इसके. Despondence का मतलब होता है डिजैक्शन, दुख, निराशा. Dearth means lack, अभाव या कमी. Gloomy means sad. और पॉल मीन्स शेड या कवर, एक ऐसी चादर जिसने हमको ढक लिया है. सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स इन दीज लाइन्स. और अभी ये जो पोएम्स का एक्सप्लेनेशन हमने किया है, इसके रिवीजन को हम इन पॉइंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं. किड्स स्पीक अबाउट द इंट्रांजिएंट नेचर ऑफ ब्यूटिफुल थिंग. जो नेचुरली ब्यूटिफुल चीज़ें होती हैं वो परमानेंट नेचर की होती हैं, हमेशा के लिए रहती हैं. दे मेक अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड्स. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमें आज ही खुश करेंगी, हम जब भी उन चीज़ों को देखेंगे वो हमें उतना ही ब्लेस करेंगी, उतना ही प्लेजर देंगी. सच थिंग्स कन्वे टू द ह्यूमन माइंड ट्रैंक्विलिटी एंड पीस. जो नेचुरली ब्यूटिफुल चीज़ होती है वो हमारे सारे दुखों, सारे कष्टों, सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करके हमें एटर्नल पीस और कंपोजर देती हैं. ब्यूटिफुल थिंग्स मेक लाइफ वर्थ वाइल as they lift the wheel of gloom, making room for hope and optimism. ढेर निराशा और हताशा के बावजूद भी ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं ये हमारी ज़िंदगी को हमेशा ब्यूटीफुल बनाए रखती हैं, हमेशा जीने लायक बनाई रखती हैं, क्योंकि ये हमारे दुख को दूर करके हमें होप और ऑप्टिमिज्म प्रदान करती हैं. So here are some 1 marks question which you need to discuss and answer in order to get full marks in this particular part. What is the message in opening line? In opening line, the poet says that a truly beautiful thing is a source of eternal joy. What are the things which make human unhappy and disillusioned? Dejection, misery, failure, improper health, all these things are a source of making life unhappy and disillusioned. Why does the man continue to love life despite his sorrow and disillusionment? सारी बुराइयां होने के बाद भी इंसान ज़िंदगी को प्यार क्यों करते रहता है? क्योंकि नेचर ने हमारी ज़िंदगी में हमें कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग ज़रूर दे रखी है, एक ऐसा गिफ्ट ज़रूर दे रखा है जो सारे दुख को दूर करके हमारी लाइफ को वर्थ वाइल बनाता है, हमें ऑप्टिमिज्म प्रदान करता है और उम्मीद देता है कि everything is going to be fine soon. Tell the meaning of Paul and dark spirits. Dark spirits here means the state of human mind when he is in confused status, when he is not able to deduce what to do and what not to do. कई बार हमारे सामने अंधेरा छा जाता है जब हम एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लायक नहीं होते कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. हम होपलेस होते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं है और हम कैसे इससे बाहर निकल पाएंगे ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता. Paul here means a cover, and here this cover is of ignorance and of misfortune. Now let's move on to the second part of the poem. Such the sun, the moon,
trees old and young, sprouting a shady boon. Now let's analyze some more blessings gifted by nature टू ह्यूमन बींग्स. अगर हम एबल नहीं हैं, अगर हमें ये विश्वास नहीं होता कि नेचर ने वास्तव में हमें अपने ब्लेसिंग से नवाजा है, तो अपने चारों तरफ देखिए वो सारी ब्लेसिंग्स जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन शायद हमने कभी ये सोचा भी नहीं कि कितने रिच हैं हम, कितने प्रिविलेज्ड हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं कि नेचर ने अपने मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स से हमें नवाजा है. फॉर एग्जाम्पल, सन है जो हमें हीट देता है, वार्मथ देता है, लाइट देता है. मून है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, चाहे वो छोटा सा फूलों का पौधा हो और चाहे वो एक बड़ा सा पेड़ जो एक शेडी बून में बदल जाता है, जो कि इज एबल टू गिव यू a shade like a blessing. जब एक आदमी तपती हुई धूप से चल के आता है, जब एक जानवर तपती हुई धूप से चल के आता है और एक पेड़ के नीचे आके एक शेड में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, तो उस समय उस पेड़ की शेड उसके लिए नेचर का सबसे बड़ा ब्लेसिंग होती है. और ये किसके लिए ब्लेसिंग है? फॉर सिंपल शीप. यहाँ सिंपल शीप का एक तो मतलब है कि इनोसेंट एनिमल्स जो सब तरफ से परेशान होके शेड के अंदर आते हैं, और यहाँ सिंपल शीप का मतलब बिब्लिकल रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि बाइबल में ह्यूमन बीइंग्स को सिंपल शीप से रेफर किया गया है, तो यहाँ सिंपल शीप यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेचर का गिफ्ट है. एंड सच आर डैफोडिल्स. ऐसा लगता है कि एवरी डे द नेचर इज ट्राइंग टू डेकोरेट इटसेल्फ विद वन थिंग और द अदर. फॉर एग्जाम्पल, टेक द ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ डैफोडिल्स इन द फॉरेस्ट. जंगल में खिलने वाले डैफोडिल्स के फूलों को देखिए. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. उस हरी भरी दुनिया में जब वो रहते हैं कितना ब्यूटीफुल लगते हैं. एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर दमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. उस छोटी सी पानी की जलधारा को देखिए जो जंगल में पौधों के पेड़ों के बीच में से होके गुजरती है, एज इफ वॉन्टनली इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द हॉट समर. पेड़ों के नीचे से निकल के शायद ये अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रही है. कहने का ये मतलब है कि नेचर अपने आप में इतनी केपेबल है कि ये एक ना एक चमत्कार हमको दिखाती रहती है और दिन पर दिन ये और ब्यूटिफाई करती जाती है अपने आप को. That for themselves a cooling covert made against the hot season, the mid forest break. ऐसे ही जंगल के बीचों बीच में वो thick ferns की झाड़ियाँ, वो hedge जो होती हैं जिन पर beautiful flowers लगते हैं, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, जहाँ फूलों के खिलने से चारों ओर खुशबुएं फैल रही हैं. It seems as if these musk roses have been scattered all around the forest. ऐसे लगता है जैसे ये फूल जो हैं ये चारों तरफ जंगल में बिखर गए हैं और अपनी खुशबू को चारों तरफ फैला रहे हैं. And such too is the grandeur of the domes. And here the poet speaks a peculiar statement. As I told you earlier, that the poet was aware of the fact that he is going to die very soon. उसको पता था कि वो मरने जा रहा है, तो शायद ये आगे आने वाली लाइंस के थ्रू अपनी मौत को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है. यानी वो अपने आप को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू डाई इट्स फाइन, बिकॉज नेचर है ऑलवेज हैज़ सम गुड इंटेंशंस अबाउट ईच एंड एवरी ऑफ हिज डिसीजन. तो मरने में भी कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर छिपी होगी. तो वो कहता है such too is the grandeur of the dooms. The death in itself is equally beautiful.
like all the above things which I have mentioned earlier, उन सारी चीज़ों के अलावा मौत भी अपने आप में बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी शानदार होती है। कैसे? वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड, क्योंकि हम जब भी माइटी डैड की बात करते हैं, हम जब भी महान लोगों की बात करते हैं, तो जनरली वी टॉक ऑफ द पीपल हु आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। हम जनरली उन लोगों की बात करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, उनकी वो वॉरियर्स जो पुराने समय में हुए, हु डिडंट हेजिटेट टू perform some amazing feat for the sake of their country और द ह्यूमैनिटी, जिन्होंने इंसानियत के लिए बड़े बड़े चमत्कारपूर्ण कार्य किए हैं, और उनके मरने के बाद हम उनकी कहानियों को पढ़ते हैं और सुनते हैं। इसे हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये लोग जब तक जिंदा रहे तब तक शायद इनके काम जो हैं वो लोगों में इतने पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन इनके मरने के बाद, मरने से पहले हो सकते हैं उनके कई क्रिटिसिज्म भी हुए हों, लेकिन मरने के बाद ये लोग जो हैं ये महानता की श्रेणी में आ गए हैं, और उनके अमेजिंग फीट्स ने उनको एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री में एटर्नलाइज कर दिया है, यानी मानव इतिहास में उनको अमर बना दिया है। यानी पोइट को भी उम्मीद है कि हो सकता है मरने के बाद उसका नाम भी महान और अमर लोगों में शामिल हो जाए। तो ही इज फाइन विद द फैक्ट दैट ही इज गोइंग टू डाई सून। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये भी तो हमारे लिए नेचर की ब्लेसिंग है। इसीलिए वो कहता है कि नेचर जो है, नेचर के जो ब्लेसिंग्स हैं, दे आर लाइक एन इमोर्टल फाउंटेन। जैसे फाउंटेन से बहने वाला पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता, वैसे ही नेचर के जो ब्लेसिंग्स हैं वो एक इमोर्टल फाउंटेन की तरह हैं, जिससे ब्लेसिंग्स निकलनी, ब्लेसिंग्स बरसनी कभी भी बंद नहीं होंगी। Till the eternity, the human being is going to be benefited, to be blessed by the pleasures and the bliss of nature. Of immortal drink pouring unto us from the heavens brink, और ये वैसे ही एटर्नल रहेगा, वैसे ही हम पर अपनी ब्लेसिंग श्योर करते रहेगा, जैसे हेवन के गेट पर लगा हुआ फाउंटेन जो अपने इमोर्टल ड्रिंक से लोगों को ब्लेस करता है, सोल्स को ब्लेस करता है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक बिलीफ है कि जब लोग मर जाते हैं और हेवन में एंटर करने जाते हैं तो उससे पहले उनको एक फाउंटेन में से होके गुजरना पड़ता है, और उस फाउंटेन से गुजरने के बाद उनके सोल्स जो होते हैं वो इमोर्टल हो जाते हैं। तो इसके रेफरेंस में पोइट कहता है दैट द नेचर इटसेल्फ विल बी कंटिन्यू टू ब्लेस अस विद ऑल द प्लेस एंड प्रॉस्पेरिटी टिल द एटर्निटी। दुनिया ख़त्म होने तक, अनंत काल तक प्रकृति अपनी खुशियों से, अपने गिफ्ट से ह्यूमन काइंड को ब्लेस करती रही है और करती रहेगी। सो लेट्स एक्सपोज टू द सम न्यू वर्ड्स। स्प्राउट मीन्स ब्लूम, खिलना। कवर्ड का मतलब है शेड। ब्रेक का मतलब है अ थिक मास ऑफ फर्न्स, एक बहुत सारे फूलों की पत्तों की झाड़ियाँ। रिल्स का मतलब होता है छोटे छोटे झरने। ग्रैंड्योर का मतलब है शान व शौकत, खूबसूरती। माइटी का मतलब है महान। टेल्स का मतलब है लेजेंड्स, कहानियाँ। इमोर्टल का मतलब है एंडलेस और अमर। अब ये जो एक्सप्लेनेशन अभी हमने किया है उसको हम इन पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। सम थिंग्स ऑफ ब्यूटी मे बी द सिंपलेस्ट थिंग ऑफ लाइफ सच एज द सन, द मून एंड द ट्रीज। जिंदगी में नेचर के ब्लेसिंग्स कई बार अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि सन के रूप में, मून के रूप में और ट्रीज के रूप में। The commonplace things such as daffodils, sheep, springs have the same effect upon human spirits. कुछ और चीज़ें भी हैं like sheep, daffodils and springs. Thoughts regarding great legacies of the mighty dead can be counted among the things of beauty as they have some sublimating effect on human spirits. जब हम पुराने महान लोगों की बात को
पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हम उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। तो हमारे लिए तो उनकी कहानियाँ, उनकी अमेजिंग फीट्स भी नेचर के ब्लेसिंग्स की तरह हैं जो हमें आगे जाने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं और हमें एलिवेट करते हैं। नथिंग कैन सरपास द बाउंटीज ऑफ नेचर। नेचर की ब्यूटी को कोई भी फैक्ट सरपास नहीं कर सकता। देयर इज एन एंडलेस फाउंटेन रिप्लीट विद जॉय लाइक अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम हेवन। और नेचर के पास एक कभी ख़त्म ना होने वाला ब्लेसिंग्स का फाउंटेन है जो स्वर्ग की तरह हम पर अपनी ब्लेसिंग्स की शोवर करते रहता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम 1 मार्क्स क्वेश्चंस। व्हाट आर सम ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स दैट द पोइट मेंशंस। तो जिन जिन चीज़ों की बात करी है आप उनमें से एग्जाम्पल दे सकते हैं। द सन, द शेप, द रिल्स, द मस्क्रोज। व्हाट इफेक्ट डू दे हैव ऑन ह्यूमन स्पिरिट। Human spirit feels delighted and enlightened when it is in touch of these pleasures of nature. What is the grandeur and the mighty dead? Mighty dead are the great warriors of the past who are no more in the world, but after their death, they are christened, they are counted in the list of great people. और grandeur की मतलब है because death has provided them an opportunity to be included in the list of great people. So death in itself is very grand and very beautiful. How does Keats compare nature with a fountain? फाउंटेन से निकलने वाला पानी जो है वो कभी भी एंड नहीं होता है एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू गिव सीरेनिटी एंड सब्लिमिटी टू द सोल्स, टू द इन्फ्लिक्टिक सोल्स। तो यहाँ पर कीट्स कहते हैं कि नेचर के पास भी एक कभी समाप्त ना होने वाला झरने जैसे ब्लेसिंग्स हैं जो वो ह्यूमन बींग्स पे हमेशा शवर करती रहती है। So here is your assignment, some NCERT questions which you are going to get in your exam for the weightage of 2 marks each. So the first one is, what is peculiar about the joy from a beautiful thing of nature. तो एक beautiful चीज़ जो होती है उसकी स्पेशल बात क्या है, तो वो जो first 3 lines हैं वहाँ से you will get your answer. A truly beautiful thing is a source of eternal joy. Its beauty continues to increase with the passage of time and it never comes to an end. Why is grandeur associated with the mighty dead? Because after the death, the amazing feats of great warriors have transformed into legends and we continue to read the stories about these legends in the books और कई बार हम उनको सुनते भी हैं और अपने कामों की वजह से वो मानव इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। What are the images that are used by the poet to describe the beautiful bounteous gift of nature? तो जो beautiful bounties of gift जो last lines में उसने बताया है कि कैसे sun, moon, musk rose, rills, breaks ये सारी चीज़ें मिलके एक खूबसूरत सा लैंडस्केप हमारे सामने पेश कर देते हैं जो नेचर ने खुद अपने हिसाब से तैयार किया है, वो आपको डिस्क्राइब कर देना है। So this was the chapter, this was the poem, the explanation, the new words, 1 marks questions and 2 marks questions from this poem. I hope you have understood it well, and if you did, please like this channel and share it with others so that it can reach up to maximum number of students and they also can get